चौथे चरण के वीवीआईपी उम्मीदवार भी वीवीआईपी वोटर भी असदुद्दीन ओवैसी वोट डालने के बाद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में करिए। So how do you think the election's been going so far? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? Would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this is going to be a tough fight for you? You said everything has changed. देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो आपका, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन। You don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? Any message for Prime Minister Modi? BJP says they're going to remove 4% quota. That's their main focus here in Hyderabad. Any message for the BJP and Prime Minister? The message would be, people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree with the venomous statements that the Prime Minister has given about one particular minority community and non-performance of his government. And please understand that, please understand one important thing. What Mr. Modi had done with Agniveer, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF, with CRPF, with Railway Protection Force and SSB. 4 years of service, you are out. Because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand, it has not come out. It will come out very soon. आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कमनल भी। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और गरीबों की से इंसाफ हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। I am the face of Indian nationalism. Five national issues you're seeking vote for today.
No, I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues, sir? No. There are many issues. See, what I feel people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this. Because 4-year service, you are out. They claim that only the cream is chosen. They claim that the cream is chosen. So the same argument will be given. Secret alliance. So see, if this can be done for the army, why won't this government do it, which we don't want? Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years? But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उसको हिंदी में बोल लेता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, तो वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे। आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. सर 75 साल प्रधानमंत्री का 75 साल के रिटायरमेंट के बाद 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। दूसरे का पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन नहीं, आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओ इसी, अरे भाई सब चीज़ है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात में उनका नाम पॉसिबल है 400 पार। देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29, 30 गायब,
तो ये मैसेज जा चुका है। Still Modi is considered the most popular leader in multiple surveys in the country. Well, सर तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग अलग राज्यों में खत्म कहाँ हुए? अरे तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई, क्या बोल रहे? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को। 7 बजे तक चुनाव प्रचार चले अलग अलग राज्यों में। 6 PM तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए। ऐसा कैसा होगा? वोट आप प्रचार करने अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। Sir, it's your birthday today and we... No. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No. I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah Subhanahu wa Taala and my mother gave birth to me, and I was born to these two. My parents, my late father, my mother, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's teaching. a poster that says gift a vote to OEC on his birthday today. No, not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. वोट डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो वोट जरूर दीजिए, और खुद को भारतीय राष्ट्रवाद के चेहरे के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने आगे रखा। जब उससे सवाल पूछा गया कि हैदराबाद में आपके सामने जो उम्मीदवार हैं माधवी लता, वो खुद को हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर आगे रखती हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का मैं चेहरा हूं, ये कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। और इस बीच हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही माधवी लता, वो भी आज सुबह वोट डालने के लिए पहुंची। उनसे खास बातचीत सुनाते हैं। हमारे साथ हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता हैं और खुलकर अपनी बात रखती हैं, ओवैसी को चैलेंज दे रही हैं। क्या लगता है आपको, ओवैसी का जो किला है वो ढा देंगी आप? वो तो निकल चुका है भैया, वो कब की निकल चुका है। तो अभी जो बचा है सिर्फ आज का परीक्षा दिन बचा है। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ से ये मजहब का द्वेष निकल जाए, बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य आ जाए और बेरोजगारी चले जाए, बेघर को घर मिल जाए और औरत को सम्मान भी मिले। आप आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी द्वेष पैदा करते हैं? बिल्कुल, ये आरोप की क्या बात है, ये तो इतिहास है। मैम, ये मैं देख रहा हूँ आप आज नंगे पांव आई हैं करने के लिए। हाँ, तो आज का पूरा दिन मैं उपवास में हूँ और मन्नत मांगते रहूँगी भगवान से कि उसका दया मेरे सारे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट पे रहे। अब तो इनको, मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट के सभी प्रजा को तरक्की दे दे, एक नया सूरज दे दे। कितने वोटों से जीत का दावा कर रही हैं आप? वो जून 4 को हम बैठ के फिर माधवी लता हैं, लगातार मुखर होके बोलती रही हैं। अभी हमसे बात करते हुए ये कहा कि ओवैसी का किला वो ढा चुकी हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।